آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس سے پہلے میں ری بلڈنگ آف دا ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ سنا رہا ہوں. کیا ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ، لیکن ری بلڈنگ آف ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ کے اوپر میں ایمفسائز کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہمارے پاس پروفیسی ہے یا کلام ہے وہ کیا بیان کرتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا کا ہر ایک شخص ڈیوڈک ٹیبرنیکل کے بارے میں، داؤد کے خیمہ کے بارے میں فلی طور پر، مکمل طور پر اویئر ہو جائے. اگر آپ داؤد کے خیمے سے اویئر نہیں ہیں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا، آپ پریزنس آف گاڈ کو، خدا کی حضوری کو، اس کے تخت کو اپنی زندگی کے اندر محسوس نہیں کر پائیں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور میری اسٹڈی کے مطابق یہ ہر ایک مسیحی اور ہر ایک گانے بجانے والے کو اس کی پوری سمجھ ہونی چاہیے. آمین. اور اس کا ذکر ہمیں آموز کی کتاب میں ملتا ہے. ایسا نکالیے، اس کا جو مین حوالہ ہے آموز کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 11ویں آیت. میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں. اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے. آمین. تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طور پر یہ امپورٹنٹ ہے. آمین. اور پھر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیے، وہاں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے. اعمال 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں. یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے. آمین. لہذا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کرو کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیموں کو کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا. تو گویا خدا داؤد کے خیمے کو بحال کرنا چاہتا ہے. آمین. اور دوسرا سموئیل 6 باب کے اندر جو ہے وہ داؤد کے خیمے کی بابت ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. دوسرا سموئیل 6 باب اور اس کی 17 اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور داؤد نے صوف کی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں. آمین. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ داؤد نے اس خیمے کو کھڑا کیا تھا، اور اس خیمہ میں کیا تھا؟ بولیے. صرف اور صرف کیا تھا؟ عہد کا صندوق. اس کے علاوہ وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. آمین. سوائے عہد کے صندوق کے وہاں پر کوئی بھی چیز وہاں پر موجود نہ تھی. اور پھر
میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا نے سینا کے مسکن کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. اور اس نے کس کو پسند کیا ہے؟ بولیے. داؤد کے خیمہ کو اس نے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. لکھا کہ میں نے صہیون کو پسند کیا. اور لکھا ہے کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے. Praise the Lord. لہذا خدا نے جو ہے وہ کس کو پسند کیا ہے؟ داؤد کے خیمہ کو اس نے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. لہذا ہمیں اس کی گہری جو ہے وہ تعلیم کی سمجھ ہونا چاہیے. اور میں آپ سے مخاطب جو ہے وہ کر چکا ہوں، میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ صہیون کیا ہے؟ خدا کا مسکن ہے. The dwelling place of God. میں نے worshipers of tabernacle of David کے بارے میں بتایا کہ داؤد کی خیمہ کے جو پرستار کیسے تھے. پھر میں نے آپ کو جو ہے یہ بتایا تھا کہ کس طور پر داؤد کے خیمہ کے اندر جو پرستش ہے وہ کیسے جو ہے ہوتی ہے. اور آج پھر میں ڈیوڈک پریز اینڈ ورشپ کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا. ڈیوڈک پریز اینڈ ورشپ، داؤد کی پرستش اور ستائش. داؤد کی پرستش اور ستائش جو اس کے خیمہ میں ہوتی تھی. 4000 جو ہے اس نے بجانے والے مقرر کیے تھے جو صبح و شام 24 hours جو ہے یہ سلسلہ اس خیمہ کے اندر جاری اور ساری تھا. 24 hours وہاں پر ورشپ ہوتی تھی. کنانیہ، جدتون، ہیمان اور آصف، یہ نو اور گانے بجانے والے یہ لوگ تھے. اور جو خیمہ کے جو عہد کے صندوق کے سامنے خداوند کی کیا کرتے تھے؟ ورشپ کرتے تھے. ساز بجتے تھے، جو ہے گانے والے گاتے تھے، ساز بجانے والے بجاتے تھے. نہ صرف وہ موجود تھے بلکہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں انوالو تھی کہ وہ خدا کی پرستش اور خدا کی ستائش کریں. آمین. آج کے چرچ کو بھی داؤد جس طور پر پرستش اور ستائش کرتا اور جنگ میں جیت جاتا تھا. آمین. کیا کرتا تھا؟ داؤد کی پرستش، داؤد کی ستائش اور داؤد کی جیت، جنگوں میں اس کی جیت. اس کو آج کے چرچ میں نظر آنا چاہیے. آمین. پھر اس کی بادشاہی جو داؤد اپنی بادشاہی میں کرتا رہا اور جس طرح اس نے بادشاہی قائم کی، اسی طرح چرچ کو بھی جو ہے اسی طرح خدا کی بادشاہی کو دکھانا ہوگا. آمین. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح خود کہتا ہے میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں. آمین. میں داؤد کی کیا ہوں؟ اصل اور نسل، اور سب کا روشن ستارہ ہوں، چمکتا ہوا ستارہ ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو سارا روٹ ہے وہ ڈیوڈ کے اندر ہے. آمین. یہ سارا کا سارا روٹ، ساری جڑیں، ساری بنیادیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ داؤد سے آ رہی ہیں. تو داؤد کی ورشپ، داؤد کی ستائش اور داؤد کی کنگڈم وہ کرائسٹ پیٹرن کے اوپر ہے. آمین. یہ کرائسٹ پیٹرن کے اوپر ہے، مسیح کی جو ہے وہ طریقہ کار کے اوپر ہے جس طرح پر وہ لاگو کرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صہیون کیا ہے؟ یہ خدا کا مسکن ہے. اور ضرور کے ریسٹریشن آف زایون جو ہے وہ بڑی اہم ہے. اور سیون کی بحالی جو ہے داؤد کے خیمہ کی بحالی جو ہے کا ایک حصہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ داؤد نے جو ہے صہیون میں جو ہے خدا کے خیمے کو کھڑا کیا جہاں پر وہ عہد کے صندوق کو لے کر آیا. یعنی صہیون وہ جگہ ہے جہاں داؤد نے خدا کا خیمہ لگایا. خدا نے صہیون کی بحالی کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس دور حاضرہ میں صہیون کی بحالی کو دیکھ رہے ہیں. ورشپ کے انداز میں، گوسپل پریچنگ کے حوالے سے، اور پھر جو ہے میوزک کے بحالی میں. یہ سب چیزیں جو ہے یہ صہیون کی بحالی کی طرف ایک قدم ہے. آمین. اور صہیون
पूरी बाइबल में जो है ये नमाया आपको नजर आएगा और सबसे ज्यादा लिखा हुआ मालूम पड़ेगा। आमीन। ज़बूर 87 उसकी वर्ष 1 to 3 में लिखा है, उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद सिय्योन के फाटकों को याकूब के सब मस्करों से ज्यादा अजीज रखता है। आमीन। क्या लिखा है? उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद सिय्योन के फाटकों को याकूब के सब मस्करों से ज्यादा अजीज रखता है। ऐ खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। सिय्योन वो जगह है जहां लोगों के पैदा होने और कायम होने का जिक्र है। और इसी ज़बूर 87 ज़बूर में लिखा है, बल्कि सिय्योन के बारे में कहा जाएगा, फलां फलां आदमी इसमें पैदा हुए और हक ताला खुद उसको क़याम बख्शेगा। खुदावंद कौमों के शुमार के वक्त दर्ज करेगा कि ये शख्स वहां पैदा हुआ था। हालेलुया। और मैं अपना यूं कह सकता हूं कि जब दाऊद ने खेमा लगाया और जब जो है वहां खेमा जब लगा और वहां पर जो है पैदाइश होना शुरू हुई लोगों की, तो खुदा ने उसको बकायदा काउंट किया, क्योंकि वहां पर खुदा की हुजूरी का गहरा बादल था। और इसकी एक रीजन जो मैं बयान कर रहा हूं कि वहां पर 24 आवर्स जो खुदा की प्रस्तुति थी, 24 आवर्स खुदा की सताइश थी और खुदा का तख्त वहां पर लगा रहता था। और मैं इन सर्मस में बता भी चुका हूं, शायद आप इसको रिकॉल कीजिए, नहीं तो जब यूट्यूब में इसको जरूर सुनिए, इन तमाम मैसेजेस को जिसका ताल्लुक जो है डेविडिक जो है वो टैबरनेकल के हवाले से है, ताकि आपको रिकॉल हो कि खुदा मुकाशफा के अंदर किस तरह पर वर्शिप होती है। खुदा तक नशीन है पूरे मुकाशफा की किताब में। अगर जो है इसी तरह सिय्योन में जो है दाऊद के खेमा के सबब से जो है इस शहर में खुदा तक नशीन था, खुदा मौजूद था। और यही बात जो है ज़बूर 22 में लिखी है, वो इस्राएल की हम्द व सना पर तक नशीन होता है। आमीन। लिहाजा अगर आज भी जो है इस अंदाज के साथ स्पिरिचुअल चर्चेस में, बोर्न अगेन चर्चेस में जो लोग पैदा होते हैं, जो बोर्न अगेन होते हैं, खुदा जो है उसको काउंट करता है। आमीन। जो नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं और जो रूह कुदस से पैदा हुए हैं, उनका शुमार जो है सिय्योन में किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है सिय्योन बाइबल मुकद्दस में प्लेस ऑफ टीचिंग है। ये सिय्योन दरसगाह है। जब आप यशायाह 2 बाब और पहली 5 आयत में पढ़ते हैं और फिर ये यशायाह 40वां बाब उसकी 9वीं आयत में पढ़े तो आपको मिलेगा सिय्योन जो है खुशखबरी सुनाने वाली जगह है। आमीन। प्रीचिंग गॉस्पेल है। सिय्योन क्या है? प्रीचिंग ऑफ गॉस्पेल, यानी खुशखबरी को प्रीच करने वाली ये जगह है। यशायाह 12:6 में अगर पढ़े तो वहां लिखा है सिय्योन नारे मारने वाली जगह है, शाउटिंग प्लेस है। कौन सी जगह है ये? शाउटिंग, शाउट किया जाता है, शाउटिंग प्लेस है। और ज़बूर 132 में जो इसका मैं जिक्र भी कर चुका हूं, सिय्योन खुदा की अबदी आरामगाह है। हालेलुया। ज़बूर 2:6 में लिखा है सिय्योन बादशाह का शहर है। और जब आप ज़बूर 128 किसको आता है, ठीक है, ज़बूर 127 128 वहां पर क्या लिखा है? सिय्योन बरकत की जगह है। आमीन। और ज़बूर 20 में पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? सिय्योन से तुझे तकवीयत मिले। आमीन। तो लिहाजा सिय्योन प्लेस ऐसी जगह है जहां से स्ट्रेंथन जो है कोई शख्स होता है, यहां से ताकत, यहां से जोर, यहां से तकवीयत मिलती है। और फिर सुनिए, जब आप यशायाह 33 बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़े, वहां पर लिखा है सिय्योन वो जगह है जहां गुनाहगार और बेदीन जो है डरते हैं। आमीन। यानी वो जगह है जहां गुनाहगार और बेदीन जो है डरते हैं। ये गुनाहगारों और बेदीनों के डरने की जगह है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर सिय्योन वो जगह है जहां रसूलों और नबियों की नींव का मुहकम पत्थर रखा है।
Praise the Lord. यशायाह 28वां बाब उसकी जब 16वीं आयत पढ़े कि मैं मुहक्कम पत्थर रखूंगा, तो गोया आप ये देखिए कि खुदा सिय्योन को क्यों पसंद करता है। रीजन क्योंकि दाऊद का खैमा जो है इस जगह के ऊपर लगा है। सिय्योन क्यों जो है इतनी वैल्यूएबल होगी है, ये जगह इतनी क्यों वैल्यूएबल है, ये कितनी बेशबहा क्यों होगी है, ये जगह के सबब से नहीं है, ये किसके सबब से है बोलिए? दाऊद के खैमा लगने के सबब से है, और फिर यहाँ पर अहद का संदूक होने के सबब से है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि किस सबब से, जिसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूं, यहाँ पर जो है प्रस्तुष और सताइश होती है। आमीन, हालेलुया। सिय्योन जलाल का शहर है, जैसा यह ज़बूर 102 13वीं और 16वीं पढ़े तो गोया आप ये मैं बताने का ये मकसद है कि आपके ज़हन में ये बातें हो कि मुझे दाऊद के खैमे के बारे में सीखना और समझना है, और मुझे प्रस्तुष और सताइश में जो है एक कदम आगे जाने की जरूरत है। लिहाजा दाऊद का खैमा जो है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए जो है उसकी प्रस्तुष का नमूना है। हजारों साल पहले जो दाऊद ने जो है सिय्योन में जो है वो खैमा खड़ा किया है, जो प्रस्तुष, सताइश और म्यूजिक जो है का एक जबरदस्त जो है वो नमूना है, और वो चर्च की पूरी पिक्चर पेश करता है। और वही पिक्चर है वो आज की कलीसिया के अंदर होनी जरूर है, जहां पर प्रस्तुष, सताइश, हमदोसना, मदसराई और म्यूजिक जो है अपने पूरी जोश और खरोश पर है, और जहां पर कोई भी चीज मध्यम नहीं होती है, कोई भी आवाज, कोई भी साउंड जो है वो क्या होती है? मध्यम नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ललकारना है, पुकारना है, सताइश करना है, हमद करना है, प्रस्तुत करना है, और उसके नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने सिय्योन में लावियों को जो है वो अलहदा कर दिया, ठीक है, वो उसने अलहदा कर दिया कि वो खुदा के हुजूर में जो है वो हमद की कुर्बानियां उसके हुजूर में पेश करें। आमीन। लिहाजा लावी क्या करते थे? वो हमद की कुर्बानियां जो है दाऊद के खैमा में पेश करते थे, और जो जबून में खैमा लगा हुआ था वहां पर क्या था? वहां पर जो है भेड़ बकरों की कुर्बानियां की जाती थी, वहां पर कहन मौजूद थे। लेकिन लावियों को दाऊद ने यहाँ पर क्या मुकर्रर कर दिया कि वो यहाँ पर हमद की कुर्बानियां मुसलसल पेश करें। आमीन। और आज मैं आपको सात इब्रानी अल्फाज जो है के जरिए से आपको प्रस्तुत के मायने बताना चाहूंगा, ताकि आप बिब्लिकल वे के साथ खुदा की प्रस्तुत और खुदा की सताइश और खुदा की हमद कर सके। आमीन। कलाम मुकद्दस की रोशनी में इन 7 अल्फाज के साथ जो बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुए हैं, जिससे हम प्रस्तुत और सताइश, प्रेज के मायने जो है इनके जरिए से खुदा की प्रस्तुत और उसकी सताइश कर सकते हैं। आप तैयार हैं? अपने काम जरा खोल के रखिए और इसको लिखने की तरफ लिखिए भी और सुनिए भी, और इसमें बहुत सारे हवाले हैं जिसे आप बाद में जाकर इसको स्टडी भी कर सकते हैं। आमीन। 7 अल्फाज, कितने अल्फाज बोलिए? और से बोलिए, फिर से 7। आमीन। और पहला लफ्ज जो आपको जो है प्रस्ताइश के लिए मिलेगा, प्रेस के लिए मिलेगा, बाराक। क्या है? इसका मतलब है झुकना। आमीन। मुबारक, तारीफ के मायने में, ठीक है, क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? झुकना, बाराक। तो बाराक जो है मुबारक के मायनों के देशी से मुबारक करता है, बाराक का ये वर्ड आया है आगे भी, इसका मतलब झुकना। ठीक है, क्या है मतलब? जब आप बाराक कहते हैं इसका मतलब है झुकना, आप मुबारक कहना, तारीफ करना, और फिर खुशी से याद करना। क्या है? खुशी से याद करना कि वो सारी बरकतों का जरिया है। आमीन। और किंग जेम्स वर्जन में जब बाराक का तर्जमा जो है वो प्रेज है। आपको गुजरात की किताब उसके 5वें बाब और उसकी दूसरी आयत में इसका मतलब मिलेगा। पेशवाओं ने जो
इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भरती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। बराक, ठीक है, इसको क्या कहो? बराक। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वर्ड है बोलिए, फिर से बोलिए। इसे आप जब जहां आप बराक करते हैं तो इसका क्या मतलब है? मैं उसके सामने झुकता हूं, मैं उसे मुबारक कहता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, मैं खुशी से उसे याद करता हूं कि उसने मुझे बहुत बरकतें दी हैं। मैं बराक करता हूं, आई बराक लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा लफ्ज आप इसको याद कर सकते हैं, यादे। वर्ड क्या है? यादे, ठीक है। इसका मतलब है, गौर से सुनिए, इसी से यहूदा वर्ड निकला है। यादे का क्या मतलब है? इसी से यहूदा निकला है। यादे का क्या मतलब है? इसका मतलब हाथ उठाकर इकरार करना। क्या करना? हाथों को उठाकर प्रस्तुत करना। यादे का क्या मतलब है? हाथों को उठाकर प्रस्तुत करना। आप बारात करते हैं तो आप झुकते हैं, आप जो है तारीफ करते हैं, मुबारक कहते हैं, ब्लेस करते हैं। जब आप यादें करते हैं, इसका क्या मतलब है? मैं हाथ उठाकर क्या करता हूं? उसकी प्रस्तुत करता हूं, मैं हाथ उठाकर इकरार करता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बूर 9 verse 1, ज़बूर 28 verse 7, 43 verse 4, 11 ज़बूर 11 verse 1, 138 verse 1। आप याद रख लेंगे ये सारे ज़बूर? आप इसको सुनिएगा और उसे बाद में भी आप जब से अपलोड किया जाएगा आप इसको सुनिए। ज़बूर 9 verse 1, ज़बूर 28 verse 7, 43 verse 4, 11 verse 1, 138 verse 1। ये दाऊद ने अपनी प्रस्तुति में, अपनी स्ताइश में यादें का वर्ड इस्तेमाल किया है कि मैं हाथ उठाकर क्या करूंगा? उसकी स्ताइश करूंगा। आपको जो है ऐसे नहीं रहना होगा, आपको क्या करना होगा? यादें, हालेलुया, हाथ उठाकर उसकी प्रस्तुति करना होगी। और फिर जब आप जो है वर्ष तीसरा जो लफ्ज जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ, तो दे। आमीन। इसका मतलब है शुक्रगुजारी करना। इसका क्या मतलब है? ईमान के साथ खुदा ने जो कुछ आपको दिया है उसके हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करना। और या आप ज़बूर 50 उसकी वर्ष 23 में पढ़ते हैं कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है। तो दे, इसका मतलब है कि आप तमजीद करते हैं। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप उसकी क्या करते हैं? कोई तमजीद करते हैं। जैसे हम अभी कह सकते हैं, ऐ खुदावंद 2020 गुजरा, 2021 आया, हम तेरा शुक्र करते हैं। तो दे, हालेलुया, आमीन। ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत, ज़बूर 69 उसकी 30वीं आयत, ज़बूर 107 उसकी 22वीं आयत, ज़बूर यशाया 51 बाब उसकी 3री आयत। आमीन। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सताइश और प्रस्तुति जो है बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टमेंट में क्या माने रखती है। ये कहना जो है ये बेवकूफी है कि ओल्ड टेस्टमेंट में लोग जो है बस बैठे रहते हैं। नहीं, यहाँ तो जो है प्रस्तुति और सताइश के नए तरीके हैं उनके पास से। ओल्ड टेस्टमेंट में प्रस्तुति और सताइश के नए तरीके थे। वो सिर्फ जानवर ज़िबा नहीं करते थे, लेकिन दाऊद ने आकर, दाऊद का खैमा जो है वो सताइश और प्रस्तुति के ऊपर से पर्दा वो उठाता है। हालेलुया। चौथा लफ्ज वो क्या है? ज़मीर। इसी से मज़ामीर वर्ड है, ज़मीर, ज़मीर ये वर्ड है। आप लोग इसको गौर से सुनिए, इसका क्या मतलब है? टू टच द स्ट्रिंग्स, ठीक है, सुर छेड़ना, इसे मदा सराई कहते हैं, ठीक है। साजों से तारीफ करना क्या है? ज़मीर का क्या मतलब है? बोलिए। साजों से तारीफ करना। टू टच द स्ट्रिंग, to touch the string, to touch the string, ठीक है। आप वो बरबत जब बजाता था, वो स्टार जब बजाता था,
جب وہ تبلا بجاتا تھا، جب وہ چھانچ بجاتا تھا. آمین. Praise the Lord. تو گویا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے دف بجنے پر ہے. وہ کیا ہوتا تھا جب وہ بجتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ضمیر. ہاللیلویا. یہ ستائش ہے، یہ پرستش ہے. زبور 47 اس کی 7ویں آیت. زبور 57 57 باب 57 اس کی 7ویں آیت. 68 باب اس کی 4تھی آیت. 144 زبور اس کی 9ویں آیت. 147 زبور اس کی 7ویں آیت. اور زبور 149 اس کی 3ری آیت. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر ان زبوروں میں لکھا ہوگا خدا کی مدح سرائی کرو، کیا لکھا ہے؟ خدا کی مدح سرائی کرو. اس کا مطلب ہے کہ پرستش ود میوزک. پرستش ود پریز ود میوزک. میں مدح سرائی کا جب لفظ بولتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ستائش کس کے ذریعے سے کر رہا ہوں؟ سازوں کے ساتھ کر رہا ہوں. لہذا ہمیں کس طور پر خدا کی ستائش کرنی ہے؟ ضمیر. ہمیں کس طور پر خدا کی پرستش کرنی ہے؟ تادے. ہمیں کس طور پر کرنا ہے؟ یادے. اور کس طور پر کرنا ہے؟ بارک. آمین. Praise the Lord. So خدا کی مدح سرائی کرو. تو مدح سرائی کا مطلب ہے کہ میں جب مدح سرائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ضرور ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوں؟ ساز بھی ہوں. اگر میں جب مدح سرائی کرتا ہوں اور جب میرے ساتھ ساز نہیں تو پھر میں تائی ساز بجاؤں تاکہ میں مدح سرائی کروں. آمین. اگر آپ کے پاس ساز موجود نہیں ہے تو آپ اس کی مدح سرائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیسے اس کی مدح سرائی کریں گے؟ بولیے. جو ہے اپنی تالیاں بجا کر کیا کریں گے؟ پھر مدح سرائی کریں گے. آمین. Praise the Lord. اور اگلا 5واں ورڈ ہے شاباک. 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 بولیے. شاباک. ٹھیک ہے. نعرہ مارنا، اونچی آواز کے ساتھ پکارنا، جلال دینا. Praise the Lord. کیا ہے اس کا مطلب؟ شاؤٹنگ. اونچی آواز کے ساتھ پکارنا، گلوری، جلال دینا. یہاں پر زبور 35 اس کی 27 میں ہے. زبور 63 اس کی 3ری آیت میں. زبور 117 اس کی 1لی آیت میں. زبور 145 اس کی 4تھی آیت میں. زبور 147 اس کی جو ہے وہ 12ویں آیت میں ہے. جہاں پر بے شک وہاں پر تعریف لکھا ہوگا لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ نعرے مارنے میں ہے. اس کا جب وہاں پر یہ ورڈ استعمال ہوں گے تو اس میں اونچی آواز ہے، اس میں اونچی آواز کے ساتھ پکارنا ہے، اس میں جلال دینے کے معنی لکھا ہے. جب آپ زبور 63 پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے. یہاں پر لکھا ہے میرے ہونٹ تیری شاباک کریں گے. آمین. یعنی اونچی آواز کے ساتھ تیری جب پرستش کریں گے، اونچی آواز کے ساتھ پکاریں گے، جو ہے وہ نعرہ ماریں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تجھے جلال دیں گے. آمین. لہذا جب آپ ستائش کرتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے ستائش کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی ستائش کیا کریں، جھک کر اس کی ستائش کیا کریں، شکر گزاری کے ساتھ اس کی ستائش کیا کریں، اور پھر جو ہے مدح سرائی کیا کریں، جو ہے میوزک کے ساتھ اس کی ستائش کیا کریں، نعرے مار کر اونچی آواز کے ساتھ اس کی کیا کریں؟ پرستش اور ستائش کیا کریں. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. اور ایک بڑا کامن جو ہے ورڈ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 6 نمبر پر میں آپ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہالیلویا. آمین. جسے ہالیلویا ورڈ استعمال ہوا ہے. ہالیلویا. ٹو میک نوائس، آواز نکالنا، ٹو میک شائن، ٹو میک گلوریس اور سیلیبریٹ. ہم سیلیبریٹ جب ہالیل ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آواز نکالنا، ٹھیک ہے، چمکنا، جلال دینے کے معنوں میں ہے. ٹو میک گلوریس، سیلیبریٹ کرنا، خوشی منانا کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ پرانے ناموں میں سب سے عام
तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। हालेलुया, इसमें बताया ये मरकब है, हालेलुया। तो ये इससे बड़ा खुदा की तारीफ हो। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है। ज़बूर 22 उसकी 23वीं उसकी 26वीं आयत, ज़बूर 34 उसकी 2री आयत, ज़बूर 35 18वीं आयत, ज़बूर 44 उसकी 8वीं आयत, 56 4वीं आयत, 63 5वीं आयत, 69 ज़बूर 30वीं 34वीं आयत, 74 ज़बूर 21वीं आयत, 84 ज़बूर 4थी आयत, 99 ज़बूर 3री आयत, 148 से 1 से 7 आयत तक, और 150 में हल्लेल वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ है पूरे ज़बूर में 1 से 6 आयत तक इसका जिक्र है। 7वीं आयत बात जिससे आप खुदा की परस्तिश को गहरे तौर पर जान सकते हैं। अजीज बहनों भाइयों, इन अल्फाज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके के साथ जब आप इन मायनों में खुदा की परस्तिश और सताइश करेंगे तो फिर दाऊद के खैमा में ऐसे नहीं खुदा का जलाल जो है वो नमदार होता था। किस तौर पर खुदा का जलाल उस खैमे को घेरे रखता था, वो किस तौर पर खुदा का तख्त वहां पर लगा रहता था। एक 7वां वर्ड है तहहिल्ले, तहहिल्ले, इसका मतलब है गाना, ऊंची आवाज के साथ जोर से गाना। इसे कहते हैं टू गिव हाई प्रेज। ऊंची आवाज के साथ क्या करना? गाना। ये है, ये ऊंची आवाज है, ये ऊंची आवाज है, ये ऊंची आवाज है, और फिर क्या है? तहहिल्ले का मतलब है ऊंची आवाज के साथ गाना। आमीन। जब हम खुदा की सताइश तहहिल्ले के जरिए से करते हैं तो फिर खुदा तक नशीन होता है। आमीन। और जब ज़बूर 100 उसकी 4री आयत में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ तहहिल्ले, इसका मतलब है तारीफ और ये परस्तिश के दरमियान में एक जो है वो डोरवे है। ये तहहिल्ले वर्ड जो है ये डोरवे का काम करता है सताइश और परस्तिश के दरमियान में। जब आप ऊंची आवाज के साथ परस्तिश करते हैं, और ये बहुत कम है। चर्च में बैठे हुए लोग बहुत कम जो है बड़ी ऊंची आवाज के साथ परस्तिश करते हैं। आमीन। अजीज भाइयों, जब ये आप तहहिल्ले की वर्शिप सताइश करते हैं तो आपको पता क्या होता है? यशाया 60:18 में लिखा है तारीफ जो है वो क्या होती है? जो है वो फाटक बनती है, दरवाजा बन जाती है। Praise the Lord। खुदा की हजूरी की एंट्रेंस से। और इसी का वर्ड यशाया 61 बाब उसकी 30 आयत लिखा है कि मैं सताइश का क्या करूंगा? खिल्लत तुझे दूंगा। वो सताइश का खिल्लत दूंगा। ये वर्ड जो है वहां पर इस्तेमाल हुआ, तहहिल्लो का जब ये इस्तेमाल जो है यहाँ पर हुआ है यशाया 61:3 में, मैं सताइश का खिल्लत तुझे दूंगा। आमीन। और जब आप यशाया 43वां बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि मैंने इनको क्या किया है? अपने लिए बनाया है। मैंने इनको अपनी हमद के लिए क्या बनाया है? क्या लिखा है? बोलिए। मैंने इनको अपने लिए बनाया कि मेरी क्या करे? हमद। पता किस अंदाज में बात की गई है? वर्ड ऊंची आवाज के साथ उसकी सताइश करना। इसलिए यहां पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है तहहिल्लो। आमीन। और ये जो ऊंची आवाज के साथ हाई प्रेज के लिए आपको बनाया गया है, आपको टू गिव हाई प्रेज के लिए बनाया है। ये नहीं जो है स्लो मोशन के लिए नहीं हमें बनाया गया है। हमें हमारी जो है वो तखलीक जो है वो किसके लिए कैसी की गई है? वो ऊंची आवाज के साथ करने के लिए ये हमें खलक किया गया है, हमें पैदा किया गया है। हालेलुया। लिहाजा जो चर्च में हर एक शख्स जो बैठा हुआ है उसकी आवाज, जो पीछे बैठा हुआ है उसकी आवाज आगे तक आनी चाहिए। जो आगे है उसकी आवाज पीछे तक आनी चाहिए। लेकिन क्या है,
जो साथ बैठा हुआ है उसको अपने साथी की आवाज नहीं आ रही है कि वो गा रहा है कि नहीं गा रहा है। कौन है जो खुदा की हमद के लिए पैदा हुआ है? बोलिए, अपना हाथ खड़ा करें। Praise the Lord. और ज़बूर 22 और उसकी 22 में जिसमें लिखा है ना कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमायत में तेरी सिताइश करूंगा। यहाँ पर भी हिल्ले का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी मैं क्या करूंगा, जमायत में तेरी जो है ऊंची आवाज के साथ क्या करूंगा, सिताइश करूंगा। ये यीशु मसीह की बाबत जो है ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। आमीन। ज़बूर 66 उसकी वर्ष में लिखा है, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी हमद करो। यहाँ पर भी जो है यही वर्ड इस्तेमाल हुआ है, टू गिव हाई प्रेज, उसकी ऊंची आवाज के साथ उसकी क्या करो, सिताइश करो। तो आप सोचिए कि हम किस तौर पर खुदा की सिताइश और खुदा की हमद कर रहे हैं, और हमें किस अंदाज के साथ खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देना है। आमीन। सताइश दाऊद के कहने का सबसे बड़ा हिस्सा है, मेजर पार्ट है। और दाऊद किस कबीले से था? बोलिए, दाऊद किस कबीले से था? हाँ जी, यहूदा। यहूदा का क्या मतलब है? प्रेज, प्रेज, हालेलुया। जो है उलिया ने क्या किया था, हाथ उठाकर खुदा की प्रस्तुति की जब दाऊद या यहूदा पैदा हुआ। इसका मतलब भी यही है। यादे का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेच आउट करना, अपने हाथ स्ट्रेच आउट करना, आप बढ़ाना, रेज करना, अपने हाथों को रेज करके स्ताइश करना। देखा ने अपनी स्ताइश हाथ उठाकर स्ताइश की। आमीन। और दाऊद तो यहूदा के कबीले से है, इसलिए तो सारे तरीके इस्तेमाल किए, झुक कर किया, हाथ उठाकर किया, ऊंची आवाज के साथ किया, साजों के साथ किया, आवाजों के साथ किया। लिहाजा हमें क्या करना है, हमें हर एक तरीके के साथ खुदा की प्रस्तुति और खुदा की सताइश और उसकी हम करनी है। हालेलुया। हमें हुक्म है कि हम उसकी कौमों में उसकी सताइश करें। आमीन। हमें क्या हुक्म है? बोलिए, कौमों में उसकी क्या करें? सताइश करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि हम जरा ऊंची आवाज के साथ कोई यह गीत या ज़बूर गाएं। हर कोई आपके यीशु बादशाह जलाल सबको आता है। किसको आता है? हाथ खड़ा करें। मैं चाहता हूं कि ऊंची आवाज के साथ जो है ये गाया जाए। वो अरिता को बुला ले प्लीज। कैसी आवाज होगी? टू गिव हाई प्रेज। कौन सी आवाज बुलंद करेंगे हम? ऊंची आवाज के साथ उसकी प्रस्तुति और उसकी सताइश करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज जीसस क्राइस्ट। मैं चाहता हूं कि सब जो है ऊंची आवाज के साथ, तालियों की गूंज के साथ, अपने पूरे जोर के साथ, अपना पूरा गला खोल कर, गला फाड़ कर वो क्या करें? उसकी सताइश करें। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल दा। और खंजरी बजाने वाले भी आगे आए, इधर खड़े हो प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। खंजरी बजाने वाले भी सामने आए। भाई साहब, भाई आइज़ एंड भाई इलियास, जोरदार आवाज के साथ। The Hillel, to give high praise. अपने पूरे जोर के साथ, जितना जोर है आपके अंदर, उतने जोर के साथ खड़े होकर हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल लेता, यीशु बादशाह जलाल लेता। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल लेता, यीशु बादशाह जलाल लेता। दुनिया के कोई तुझे, दुनिया के कोई तुझे कांद भी देगा।
Shut